गुड आफ्टरनून एंड आप सभी से मिलने में मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है और आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ दोस हु जॉइंड इन सो वील सी हाउ कैसे हम आने वाले 45 मिनट्स को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ आई विल गिव यू अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ हाउ वी प्लान टू यूज द नेक्स्ट 40 minutes. So I would want to introduce to you what sports missions are like. How do you do ministry through sport? खेल के माध्यम से कैसे हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, कैसे यीशु के लिए शिष्य बना सकते हैं, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद पावर और पोटेंशियल ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स का जो क्या बोलते हैं शक्ति या उसका इफेक्टिवनेस क्या है उसके बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जितने भी स्ट्रैटेजीज है उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और एंड देन आई विल also speak to you about something called whole life coaching प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको information दूंगा और I'll give you a presentation on that. So let's pray that God. Sorry, Sylvester, sir, shall I? My Hindi is not full 100%, but would it help if I translated you? All right, sure. Yeah, I think free you up a little bit, yes? Yes. तो माफ कीजिए मेरी हिंदी बिल्कुल पक्का नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगी ताकि सिल्वेस्टर सर आजादी में बात कर सकते. That's really helpful. Thank you. All right. So what is sport ministry and missions? खेल की सेविकाई और मिशन क्या है? If you have a few answers, you can probably put it on the chat box. अगर आपके जवाब है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते. Is my screen visible? Yes. All right. All right. So see if I've got some answers. तो मैं देखूंगा क्या मेरे पास कुछ उत्तर है. Did anybody type on the chat box? क्या किसी ने उत्तर दिया? खेल के सेवकाई क्या है? इसका क्या मतलब है? क्या अर्थ है? क्या हो सकता? As you keep thinking, let me introduce you to what is the vision of the sport movement, sport ministry movement. तो जैसे आप सोचते रहेंगे मैं आपको स्पोर्ट्स मूवमेंट के दर्शन दिखाने वाले हैं. So the vision for ministry through sport is to make disciples in all nations for Christ in the world of sport and play. तो मिशन स्पोर्ट का मिशन का दर्शन है कि खेल की दुनिया में अलग अलग देश में हम मसीह के शिष्य बनाएंगे. Yes. So this is a movement, it is not an organization. वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक समूह, एक टीम जैसे है. And so we have people from different countries coming together with this vision to make disciples for Christ through sport. तो एक अलग अलग देश की ओर से लोग इकट्ठा होते हैं एक ही लक्ष्य, एक ही दर्शन के साथ कि खेल के द्वारा यीशु के शिष्य बनाएंगे. Okay. Let's play a small quiz before we move a little deeper, okay? अभी हम एक छोटा सा क्विज प्रश्न का खेल खेलेंगे. All right. So on your screen, there are 10 sports that are mentioned. आपकी स्क्रीन पे 10 अलग अलग खेल है. And what you have to do is you have to arrange them according to the popularity of the sport. The most popular sport in the first,
and then 2, 3, 4 as the popularity decreases. Okay. तो आपको वो 10 खेल देखना सोचना है कि सबसे पॉपुलर सबसे मनपसंद खेल कौन सा है, वो एक नंबर स्थान पे लिखो, फिर दूसरा खेल, तीसरा, और 10 नंबर ऐसे खेल जो जैसे आपको लगता मनपसंद वाला नहीं है, आपकी मनपसंद नहीं, दुनिया के लोग के पसंद के बारे में हम बात कर रहे हैं. Yes, according to the world. Okay. So you can put your answers in the chat box. We'll take about 30 seconds. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कुछ 30 सेकंड का क्षण लेंगे. If you're finding difficult to write in the chat box, I've opened the WhatsApp group. You can send your message there and we'll read out the messages. अगर आपको लग रही कि chat box में लिखना मुश्किल है, तो WhatsApp group खोला है, आप उधर लिख सकते हैं आपके numbers. So you have to rank the sports according to their popularity. There are 10 sports mentioned there, from the most popular sport to the least popular sport. You have to rank them in that order. तो आपको ऐसा लिखना है, मैंने क्रिकेट 2 बार लिखी. आपको एक नंबर स्थान में सबसे पॉपुलर खेल लिखना है. ओके, किसी ने पूरा लिस्ट दे दिया. Someone's given the full list. All right, good. I've seen some answers. Let's look at the answers and see if they match what you have, what you're thinking, or what you've typed. अच्छा है, कुछ लोग ने इनके उत्तर दे दिया. अभी हम सच लिस्ट देखेंगे. Here we go. So we have football or soccer as the most popular across the world. सबसे मनपसंद वाला खेल है फुटबॉल पूरा दुनिया में, या soccer. Yeah, and then we have cricket, basketball, hockey, tennis, volleyball, table tennis, rugby, and then last one's American football. Oops. फिर आप पूरा लिस्ट देख सकते. सबसे मनपसंद खेल है फुटबॉल, फिर 2 नंबर में क्रिकेट, फिर All right, here we go. इसके भी 3 नंबर बास्केटबॉल, फिर फील्ड हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बेसबॉल, रग्बी, और सबसे आखिरी अमेरिकन फुटबॉल. Now, what is of importance is the numbers next to the football, the numbers next to the sport that's mentioned. जो महत्वपूर्ण है वो नंबर जो है खेल के बाद में, वो नंबर महत्वपूर्ण है. Okay, so you see 3.6 billion people around the world follow football. Okay. Same thing with cricket, it is about 3 billion, basketball is 3 billion, and then we have in that order. So if you were to tally all that up, put that up, it's almost about, it amounts to about close to 65 to 70% of the world's population. ओके, तो अगर आप वो सब नंबर्स एक साथ मिलकर देखेंगे, तो वो हमारा सारी दुनिया के लोग के 75% है.
Yeah, 75 to 80%. Okay. Now, what does that mean? What does that mean? If so many people are interested in sport or follow sport, does that give us an opportunity to look at sport as a platform for missions and ministry? Sorry, 1 second. अगर इतने सारे लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, इतने सारे लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, कैसे भी तरह वो लोग स्पेक्टेटर्स हो सकते हैं जो सिर्फ देखते हैं स्पोर्ट को, या वो लोग सीख रहे हैं स्पोर्ट खेलने के लिए, या कुछ भी कोई कई लेवल्स पे वो लोग स्पोर्ट खेल 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 रहे हैं, तो इतने सारे लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो क्या हम स्पोर्ट्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तरह देख सकते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, यीशु के लिए? You need to So it gives, translate. You can go ahead. Yeah. so look at this as an opportunity, and that is what we're exploring this morning, और this इसे एक afternoon, मौके के रूप में देखिए, और इसी को हम देख रहे हैं आज दोपहर में। right? So we call this as the ready, set, go. और हम इसे कहते हैं कि तैयार है और निकलने के लिए। Okay, so in a running race, you see an athlete, these three words are used, right? In sport, ready, और दौड़ के खेल में हम देखते हैं ये तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम। पहला है तैयार, set, आप स्थिर हो वहां पर, and then go. और फिर निकलो। Yeah. So in any language, they will use these three words as something that they would start to run the race. और किसी भी भाषा में इन तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दौड़ की शुरुआत करते समय। So in the sport ministry movement, और हम खेल की जो सेवकाई की जो गतिविधि उसमें we look at ready as capturing the vision. और हम ये तैयार रहने के बारे में हम देखते हैं इस स्वरूप में कि दर्शन को पकड़ लेना। Set is looked at as training. और स्थिर रहने के बारे में जो है प्रशिक्षण के बारे में, ट्रेनिंग के बारे की ओर देखा जाता है। And go is all the strategies that we have to do ministry. और निकलो या जाओ का मतलब है कि वो सभी रणनीतियां हमारे पास है सेवकाई करने के लिए। Right. So this is the big picture, to make disciples of all nations in the world a sport and play for Christ. और ये जो है एक बड़ा दर्शन ये है कि हम सभी राष्ट्रों में से हम शिष्य बनाए, खेल के क्षेत्र में यीशु मसीह के शिष्य बनाए। And we are going to unpack what this looks like. और हम इसे अब खुला करके दिखाएंगे कि ये कैसे दिखाई पड़ता है। Right. So what is the potential that sport has, or the power that sport has, in order for us to use it for ministry? और खेल के अंदर कितनी क्षमता या सामर्थ्य है जिससे कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेवकाई के लिए। Okay. Why do so many people love sports so much? और लोग क्यों इतना ज्यादा, इतने सारे लोग क्यों खेल इतना पसंद करते हैं? How many of us here like sport, like playing sport? और कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्हें खेल अच्छा लगता है, क्रीड़ा अच्छा लगती है, अच्छी लगती है? Give me a thumbs up if you love sport or you play sport. और यदि आपको खेल पसंद है और आप खुद खेलते हैं तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं। Brilliant. Thank you, Sister Sheetal. Yeah. बढ़िया, धन्यवाद सिस्टर शीतल। All right. Yes, Brother Dominic also says thanks, thumbs up. So we all love sport. Anita, thank you so much. Okay, let's move on. और अंगूठे दिखा रहे हैं, हम सबको खेल पसंद है, हम आगे बढ़े। Okay, let's look at this small little statistic. और यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए इसे देखें। Okay, how many, the number of people involved each week in the following activities? और जो लोगों की संख्या हर हफ्ते जो है इन दिए गए कार्यों में शामिल रहते हैं। So how many people use internet? कितने सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? Close to 3.5 billion people use internet during the week. और 350 करोड़ के करीब लोग जो है हफ्ते भर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2 billion people have smartphones. और 200 करोड़ लोगों के पास में स्मार्टफोन है। And a little above 2.5 billion people go to church.
और 250 करोड़ लोगों से थोड़ा ज्यादा जो लोग हैं वे कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं। This is a week. This is a weekly statistic. और ये हफ्ते भर का, ये जो है हफ्ते भर के आंकड़े हैं। Now let's see how many people are involved in sport every week. और अब हम देखिए कि हर हफ्ते कितने सारे लोग खेल में शामिल होते हैं, अलग अलग प्रकार के। More than 5 billion people are actively involved in sport each week. और 500 करोड़ से ज्यादा लोग जो है सक्रिय रूप से किसी ना किसी खेल में शामिल होते हैं एक हफ्ते भर में। And this is about more than 60% of the world's population today. और ये जो है आज जगत में जितने जगत की लोक संख्या है उसके 50% से ज्यादा है, या So 60% से ज्यादा है, क्षमा करें। this is the this is the potential that sports has to be used for ministry and mission. और ये जो खेल में ये जो क्षमता है जिससे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेवकाई के लिए। Okay. And so now we will look at a few other things. अब हम कुछ और चीजों के पास देखने वाले हैं। All right. So sport is valuable and it is a place to worship God. और Have you ever खेल thought जो, about that since? और ये खेल जो है ये बहुत ही मूल्यवान है अपने आप में, और ये परमेश्वर की आराधना करने की एक जगह है। मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। Right? The Romans 12:1 says, offer your bodies, therefore offer your bodies as a living sacrifice. रोमियो का 12वां अध्याय कहता है पहला वचन से कि इसलिए तुम अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। So when an athlete is on the field, he's offering his body, to worship God in expressing the talents that he has. तो एक जब खिलाड़ी मैदान पर होता है वो अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहा है, अपने अंदर डाले हुए हुनर को दिखाते हुए। And you see, in the way he conducts himself on the field, also shows that he's living his faith. और अब देखते हैं कि किस तरह से उस खेल के मैदान पर जो है किस तरह से अपने आप को वो जता रहा है, अपने बर्ताव के द्वारा दिखाता है कि वो अपने विश्वास अनुसार जीवन जी रहा है। Right? Sport, can somebody read that for me? What's the next point that comes on your screen? आपके स्क्रीन पर Sports अगला is क्या आया valued है? by many people. Yes. So we just saw that over 65 to 70% of the world's population is involved in sport each week, which means people look at it as something of value. और हमने देखा कि जो है जगत की लोक संख्या में से 65 से 70% लोग जो है खेल में शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि खेल जो है लोगों के लिए मूल्यवान है। It helps somebody get fit. और इससे मदद मिलती है किसी को चुस्त बने रहने के लिए। It's an opportunity to connect with people. और एक मौका होता है दूसरे लोगों के साथ संपर्क बनाने का। So there is so much of value in sport. तो खेल में कितना ज्यादा मूल्य है। Okay, next point. Sport is a setting in which we live and communicate the gospel. और खेल एक ऐसा माहौल होता है जहां पर हम सुसमाचार अनुसार जीवन जीते हैं और सुसमाचार को पहुंचाते भी दूसरों तक। You see, we just don't speak the gospel, but it's an opportunity to live and communicate it. तो देखिए कि हम सिर्फ सुसमाचार को बोलते नहीं मुख से, परंतु हम सुसमाचार अनुसार जीवन जीकर दिखाते हैं। All right, sport is a context for discipleship. खेल जो है वो नियमित रूप से शिष्यत्व के लिए एक संदर्भ बन जाता है। So how does this happen? Every day when an athlete comes to train, he needs a coach, right? तो ये कैसा होता है, हर दिन जब वो खिलाड़ी आता है अपना ट्रेनिंग के लिए, वहां पर उसे एक गुरु या कोच की जरूरत होती है। And सही है। that builds, and the athlete will listen to whatever the coach says. वो जो खिलाड़ी है वो जो कुछ उसका कोच कह रहा है उसे सुनेगा, Because he wants to improve in the sport that he's playing. क्योंकि जो वो खेल खेल रहा है उस खेल में वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। Now, if this coach wants to communicate the gospel, और ये जो कोच की इच्छा है कि वो सुसमाचार को बताना चाहता है,
because the coach is not interested only in the sport, क्योंकि उस कोच को सिर्फ उस खेल में ही दिलचस्पी नहीं है, but he is interested in the life of the athlete. परंतु उसे उस खिलाड़ी के जीवन में दिलचस्पी है। And we see it is an opportunity for discipleship. और तब हम देखते हैं कि एक मौका है शिष्यत्व में बढ़ावा देने का। Okay. Can somebody read this point for me? कोई इस मुद्दे को पढ़ेगा अंग्रेजी में? Sport is fun and healthy. Yeah, isn't it fun? It's healthy, it is fun. We laugh, we scream, we shout, we bring all the energy out. And when you score a goal, or when you hit a six, or when it is so much fun. Everybody is excited. There's so much energy there, and you're running और around, and it helps us get fit and healthy. और हम देखते हैं यहाँ पर कि खेल सच में इतना मजेदार होता है, सेहत से जुड़ा हुआ होता है। हम चिल्लाते हैं, हम आवाज करते हैं और खुशी से हम उछल पड़ते हैं आवाज करते हुए जब कोई गोल कर दिया, मार दिया हो, या किसी ने सिक्स मार दिया हो, और हम खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हैं और दौड़ते भी हम यहाँ पर उस खेल में। इससे हमें सेहत से भी जुड़ा, स्वास्थ्य से भी जुड़ी बात होती है। You want to play well, you have to be healthy. और यदि आपको अच्छी तरह से खेलना हो तो आपको सेहतमंद होना जरूरी है। Even in ministry, if you are passionate about doing missions, but you're not healthy, then we won't be able to serve God in the best possible way. We won't be able to give 100%. और सेवकाई के में भी वही बात है। यदि आप बहुत ही सेवकाई के संदर्भ में आप बड़े जोशीले हैं, जोश से भरे हैं, लेकिन यदि आप या मिशन को पर निकलने के लिए, लेकिन यदि आप सेहतमंद नहीं है तो आप परमेश्वर को अपना बेहतरी नहीं दे पाओगे। So you see, health is so important. तो हम देखते हैं कि सेहत कितना महत्वपूर्ण है, And sports can help us keep fit. और खेल जो हमारी मदद कर सकती है हमें चुस्त और सेहतमंद बनाए रखने। So you see, this is the power and potential of sport. तो हम देखते हैं कि खेल की ये सामर्थ्य और उसमें इतनी क्षमता है। All right. Why would you focus on sport to fulfill the Great Commission? इस महान आदेश को पूरा करने के लिए आप खेल की ओर क्यों ध्यान केंद्रित करोगे? This is a question that we ask ourselves. और ये ऐसा सवाल है जो हम अपने आप से करते हैं, Because it gives us an amazing platform. क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत मंच दे देता है। Okay, so I want you to keep that in mind now. I'll quickly run through what is the heart of the sport movement, what we believe in. और मैं चाहता था आप उसे ध्यान रखें, और आगे हम जल्दी से बढ़ेंगे देखते हुए कि ये जो खेल से जुड़ी हुई जो गतिविधि है, जो इसका खास, इसका हृदय क्या है। Okay, so there are three things we look at: what we do, where we do it, and how we do it. हम तीन बातों की ओर देखने वाले कि हम क्या करते हैं और हम कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं। Okay, what we do is we proclaim the gospel, we make disciples in obedience to the Bible. जो हम करते वो ये है कि हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं, शिष्य बनाते हैं और हम पवित्र शास्त्र का पालन करते हैं। This gives us a clear perspective and it keeps us on track. और ये हमें बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण देता है और हमें राह पर बनाए रखता है। Where do we do it? In and through the church, in sport and play, and in every city and every community. और इसे हम कहाँ करते हैं? हम कलीसिया के भीतर और कलीसिया के द्वारा करते हैं, और किसी भी खेल में और किसी भी वहां पर खेल में करते हैं हम, और प्रत्येक शहर में और प्रत्येक समुदाय में। And how do we do it? We want to live as servants, we want to work in teams, and we want to partner. और हम इसे किस तरह से करते हैं? हम सेवकों के रूप में जीना चाहते हैं, हम टीम या समूहों में मिलकर काम करना चाहते हैं, और साथ में हम दूसरों के साथ साझेदारी में भी काम करना चाहते हैं। This is the heart of the movement. और इस गतिविधि का जो हृदय ये है। So we want to proclaim the gospel, we want to make disciples, we want to obey the Bible. तो हम है सुसमाचार की घोषणा करना चाहते हैं, हम शिष्य बनाना चाहते हैं, और हम पवित्र शास्त्र का पालन करना चाहते हैं। We want to do it in and through the church, in sport and play, and in every city and community. और हम जो है कलीसिया के द्वारा कलीसिया में करना चाहते हैं, और प्रत्येक खेल या खेलों में
और प्रत्येक शहर और प्रत्येक समुदाय में। And we want to be serving, we want to work in teams, and we are willing to partner with everyone. और हम जो है सेवक बनते हुए रहना चाहते हैं, सेवा करते हुए हम समूह में मिलकर काम करना चाहते हैं और दूसरों के साथ भी साझेदारी में काम करना चाहते हैं। So this is the big picture introduction of the sport ministry. तो खेल की जो ये सेवकाई है, इसका एक बड़ा चित्र है परिचय के रूप में। And we saw three things. We saw the vision of the sport ministry, and we और saw, yes, brother, go ahead. हमने तीन बातों को देखा है। पहले हमने ये खेल की सेवकाई के दर्शन को देखा है। The next, we saw what is the potential and the power that sports has. फिर हमने दूसरा देखा कि खेल में क्या सामर्थ और क्षमताएं हैं। And we saw some statistics and saw how many people around the world are actively involved in sport. और फिर हमने कुछ आंकड़े देखे दिखाते हुए कि विश्व भर में कितने सारे लोग हैं जो सक्रिय रूप से खेल में शामिल है। And we saw what is the heart of the movement. फिर हमने देखा कि इस गतिविधि का हृदय क्या है। Right. So now I'll quickly introduce to you what are the strategies in the movement, sport ministry. तो अब मैं इस खेल की सेवकाई में जो है कौन सी रणनीतियां हैं उसके बारे में जल्दी से बताना चाहूंगा। Okay. So what are go strategies? और भागने या निकलने का की रणनीतियां क्या है। So it is a way to go into the world of sport. और एक तरीका है कि हम खेल के जगत में जाएं। And these are ways to go into the community. और ये ऐसे तरीके जिससे कि हम समुदायों में जा सके। Okay, so these are the things that we're going to look at, into the world of sport and into the community. और खेल की जगत में जाना और समुदायों के बीच में जाना। All right. इसे So हम these are देखेंगे। so in the world of sport, we are looking at sports academies. और हम खेल की जो जगत में हम देखते हैं कि जो खेल के कोई खास खेलों को जो सिखाया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, वे क्षेत्र। We see action sports or adventure sports. और ऐसे खेल जो रोमांचक होते हैं और बहुत ही हलचल या गतिशील गति इसमें शामिल है। So that's like going on a hike or going trekking or skateboarding or paragliding. All these become adventure sports. और हम देखते हैं कि ये जो खेल है वे उदाहरण के लिए समझो पहाड़ पर चलने निकल गए और पैराशूट के द्वारा ग्लाइडिंग कर रहे हैं या स्केट के ऊपर स्केट बोर्डिंग कर रहे हो। And then we have active kids discipling. और फिर हमारे पास में है सक्रिय बच्चों का शिष्यत्व करने आगे चलाना। And we will look at it in detail in a little while. कुछ समय में इसे बारीकियों में देखेंगे। And then we have all abilities sport. और फिर हमारे पास में है ऐसे खेल जिसमें सभी काबिलियत शामिल है। Okay, so people with disabilities, this is focused on them. और ऐसे लोग जो है जो विकलांग है शरीर में अलग अलग रीति से ये खेल उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। We have sports chaplaincy. हमारे पास में खेल की चैपलेंसी है। So these are people who give faith mentorship to high profile and elite athletes. और जो ऊंचे दर्जे के जो है मशहूर जो ऊंचे स्तर के जो खिलाड़ी है उनको ये लोग आत्मिक रूप से एक तरह से उनको उनकी देखरेख करते हैं। This normally happens in big events or tournaments like the Olympics or World Cups. We have chaplains who are pastors or mentors who work in the sports villages, in the Olympics villages, speaking to people, encouraging them, strengthening them, leading them to faith, walking और alongside these athletes. और ये होते बड़े बड़े ऐसे जो खेल के कार्यक्रमों में उदाहरण के लिए ओलंपिक्स में हो और वहां पर ये जो चैपलिन होते एक पासवान के रूप में होते गुरु के रूप में होते वे जाकर उस खेल के जो गांव स्थित है उसमें ओलंपिक्स में उन क्षेत्र में जाकर वे जाकर खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और आत्मिक रीति से उन्हें बढ़ावा देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। And then we have clubs and teams. और फिर हमारे क्लब और टीम्स होते हैं। And coaches and teachers.
और फिर कोच होते हैं और शिक्षक होते हैं सिखाने वाले। And then we have tournaments and festivals. और फिर हमारे टूर्नामेंट होते हैं और हमारे अलग अलग उत्सव भी होते हैं। So all of this is in the world of sport. तो ये सारी बातें जो है खेल की जगत में है। This is focused towards athletes who are seriously into sports और ये जो है खास तरीके से खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो गंभीरता से अलग अलग खेलों में शामिल है। and across age groups. और अलग अलग जो उम्र की जो समूह है उनमें। And now we look at some of the strategies that are targeted towards communities. अभी हम कुछ ऐसे रणनीति की ओर देखेंगे जो जिनका जिनका निशाना समुदायों की ओर होता है। We have global community games. और हमारी वैश्विक समुदाय की जो खेल हैं। This is more fun. Uh, this is more to engage the community. और ये बड़ा मजेदार होता है, मजे से भरा होता है, खासकर जो है समुदाय लोगों के समुदाय के साथ में थोड़ा संपर्क बढ़ाने के बारे में होता है। This is for children, for families, for the youths, for teenagers, across this different groups of people. और ये युवाओं के लिए होता, परिवारों के लिए होता, बच्चों के लिए होता है और किशोर बच्चों के लिए भी होता है और ये सभी उम्र के लोगों के लिए होता है। Then we have the governing bodies of sport. और फिर हम देखते हैं खेल के ऊपर शासन करने वाले जो समूह होते हुए। So these are bodies that control the sport in a particular place. और ये ऐसे समूह होते हैं, अधिकृत समूह होते हैं जो किसी स्थान में उस खेल के ऊपर उनका नियंत्रण रखे रहते हैं। So like the BCCI that controls cricket in India. उदाहरण के लिए बीसीसीआई जो है भारत के क्रिकेट पर नियंत्रण रखता है। Or like FIFA that controls the football across the world. या उदाहरण के लिए फीफा जो विश्व भर में फुटबॉल के खेल पर नियंत्रण रखता है। And then we have high profile athletes. और फिर हम देखते हैं ऊंचे दर्जे के उच्च कोटि के जो खिलाड़ी होते हैं। So this strategy explores how do we reach out to people, to high profile athletes. और ये जो रणनीति जो है ये इस बात की ओर खोज करती है कि किस तरह से हम इन ऊंची कोटि के खिलाड़ियों तक पहुंच पाएंगे। And then we have sports camps, sports centers, sports in disaster struck areas. So all of these are strategies that are targeted to the community. और हम देखते हैं खेल के अलग अलग शिविर होते हैं, फिर खेल के केंद्र होते हैं खेलों के, और फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपदा आकर गई और वहां पर खेल करना, ये सब अलग अलग रणनीतियां हैं लोगों के समूह तक पहुंचने के लिए। These are some examples of strategies that we have in the sport ministry movement. तो ये कुछ उदाहरण है उन रणनीतियों के बारे में जो हमारे खेल की गतिविधि में शामिल है। All right, so we don't have time to go in detail in each of these strategies. तो हमारे पास समय नहीं कि हम इन प्रत्येक रणनीतियों में से गुजर कर जाए इसके लिए। But what we will do is we will look at one particular strategy today. तो हम ये करेंगे कि आज किसी एक रणनीति को देखेंगे। And that is called whole life coaching. और इसका नाम है संपूर्ण जीवन में कोचिंग करना। Okay. So this will be our focus for the next 10 minutes. तो अगले 10 मिनट के लिए हमारा ध्यान इस पर केंद्रित होगा। Okay. Any questions you have till now? अब तक किसी के पास कोई सवाल है? No questions. So we will move on. कोई सवाल नहीं, तुम लोग आगे बढ़ेंगे। All right. So whole life coaching is also called as Uba Balo. और ये जो पूर्ण जीवन की जो कोचिंग है इसे ये भी कहा जाता है इस नाम से उबा बालो। Now this is an African word that it means God's grace. और एक अफ्रीकी शब्द है जिसका मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह। This was something that originated in Africa, specifically in South Africa. और ये कुछ ऐसा शब्द है जो अफ्रीका से उभर कर निकला, खास करके उत्तर अफ्रीका में से। And this strategy began in Africa.
और दक्षिण अफ्रीका से, और ये जो रणनीति जो है वो अफ्रीका से निकल कर आई। It is because of a problem, a big problem that Africa faced. और ये इस कारण हुआ क्योंकि अफ्रीका ने एक बड़ी समस्या का सामना किया। And now Ubabalo is being used all across the world और अब ये उबा बालों का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे विश्व भर में, to reach children and young people in the communities. और समुदायों में बच्चों और जो युवा पीढ़ी के युवा बच्चे हैं उन तक पहुंचने के लिए। Okay, so Ubabalo hopes to do three things. अब उबा बालो 3 कार्य करने की आशा रखता है। Number one is to transform people and communities. और सबसे पहला है कि लोगों को और समुदायों को परिवर्तित करना। Second is to help disciple teenagers and children. और दूसरा है कि जो किशोर अवस्था के जो युवा और बच्चे हैं इनके शिष्यत्व में मदद करना। And the third one is to help correct the problems of fatherlessness. और तीसरा है कि जिनके पिता नहीं है उसके द्वारा उभर रहे समस्याओं को उसकी सुधार करने में मदद करना। So these are the three things that we hope to address through Ubabalo. तो उबा बालों के द्वारा हम ये 3 बातें हैं, जिनकी 3 विषय है जिनको हम मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। All right. So do you know what is the biggest problem in the world today? क्या आप जानते हो कि आज जगत भर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? It is fatherlessness. और वो है पिता का न होना। Okay, that is the biggest problem in the world today. और आज जगत में सबसे बड़ी समस्या यही है। It's not poverty. ये गरीबी नहीं है। It is not unemployment. और ये बेरोजगारी नहीं है। It is not war. ये युद्ध नहीं है। But it is fatherlessness. परंतु ये पिता का न होना है। Okay, 40% of all children 40% of all children do not live with their biological fathers. और सभी बच्चों में से 40% ऐसे जो अपने शारीरिक पिताओं के साथ में नहीं रहते हैं। 85% of children with behavioral problems come from fatherless homes. और ऐसे बच्चे जिनके स्वभाव में समस्याएं हैं उसमें से 85% बच्चे जो है ऐसे घरों से आते हैं जहां पर पिता मौजूद नहीं है। 90% of homeless children come from fatherless homes. बेघर बच्चों में से 90% बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहां पर पिता नहीं है। 71% of children who do not finish school come from fatherless homes. और ऐसे बच्चे जो स्कूल पूरा नहीं करते उनमें से 71% बच्चे जो ऐसे घरों से आते हैं जहां पे पिता नहीं होता है। Friends, these are alarming statistics. और ये जो बहुत ही चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। Some more statistics for us. 63% of suicides come from fatherless homes. और कुछ और आंकड़े हमारे सामने जो आत्महत्या करते हैं उसमें से 63% जो लोग हैं वे ऐसे घरों से आते हैं जहां पर पिता नहीं था। And see this, 80% of rapists are motivated by displaced anger coming from fatherless homes. और हम देखते हैं जो बलात्कार करने वालों में से 80% लोग जो है उनके घर में पिता नहीं था उस कारण जो गुस्सा है और वो गुस्सा गलत रीति से वो निकालते हैं बलात्कार के द्वारा। And 70% of juveniles in state operated institutions come from fatherless homes. और हम देखते हैं कि ऐसे जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में जहां पर किशोरावस्था की उम्र के कम से जो गुनहगार है उनमें से 70% ऐसे घरों में से आते हैं जहां पर पिता नहीं था। So fatherlessness is a massive problem. तो पिता का न होना ये बड़ी समस्या है। And Ubabalo is a sport coaching program that was designed to address this issue. और उबा बालो ये एक खेल का एक कार्यक्रम है जिसकी रचना की गई इस विषय में असर लाने के लिए। Okay. What I want to ask you a question now. What statistics did you find most discouraging?
और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको कौन सी आंकड़े जो आपने देखे उसमें से आपको सबसे ज्यादा आपको निरुत्साहित की। You can put it in the chat box. आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं किसे देखकर आपको ज्यादा बुरा महसूस हुआ। So this is a real problem, friends, and we are trying to address this issue using sport as a platform. और ये वास्तविक समस्या सच में है दोस्तों, और हम खेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और खेल के मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए। Okay, and if you were to make a list of the consequences of fatherlessness and make a list of some people you know are struggling with these issues, make a note of those names, and then we'll take maybe about 15 seconds to just remember these people and give a और small prayer. और हम देखते हैं कि पिता का न होने से नतीजे पूर्वक अनुसार क्या क्या होता है। अगर आप उनकी सेवा करना चाहते तो आप जो है आप ऐसे बच्चों के बारे में सोचे जिनके पिता नहीं है, उनकी सूची बनाए, उनके लिए प्रार्थना करें, हम समय निकाल कर प्रार्थना करेंगे। Yeah, Brother James, प्रार्थना करोगे? करूँ मैं? Yes. परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन बच्चों के लिए, परमेश्वर हम आपकी ओर देखते हैं जिनके पिता नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप सबसे बेहतरीन पिता हो परमेश्वर। प्रभु आपने दिखाया पिता कैसा होता है परमेश्वर, और सच्ची प्रेम। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के दिलों में परमेश्वर उस कमी को पूरा आप कीजिए आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर। और पिता के न होने से परमेश्वर जो उनके स्वभाव में परमेश्वर बदलाव हो गया है, बिगड़ गया है, खालीपन है, पवित्र आत्मा मांगते इस समय आप उन्हें स्पर्श करें परमेश्वर, उस खालीपन को भर दीजिए। उनके स्वभाव में आप प्रभु सुधार ले आए, परिपूर्णता ले आए परमेश्वर। उनके पास ऐसे लोग भेजिए परमेश्वर जिससे उन्हें मसीह लोग भेजिए परमेश्वर, जिनसे उन्हें परमेश्वर पिता आपके प्रेम का अनुभव हो परमेश्वर, और उनकी पिता की कमी प्रभु दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी प्रयास इसे दूर नहीं कर सकता परमेश्वर, आपकी आत्मा इसे दूर कर सकती है परमेश्वर। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। Thank you. So let's move on. अब Uh, आगे बढ़े अभी। I want to ask you a question. What positive legacy did your father leave you? और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके खुद के पिता ने आपके ऊपर कौन सी ऐसी अच्छी बात जो है वे छोड़ कर गए, सकारात्मक बात विरासत में। Right? And I hope you make a note of this somewhere in your writing. Yes, values. Thank you, Sister Anita, for sharing that. Good value और system. अच्छा, आशा करता हूँ कि आप इसे लिख ले रहे, जिसके बाद में आप जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद सिस्टर अनीता जो है वो कह रही है मूल्य जो है, अच्छी बातें, अच्छी मूल्य जो है वो पिता से मिली है। Not to stop doing good. Thank you, Sister Shirley. धन्यवाद सिस्टर शैली, वे कह रहे हैं कि भला करना, भला कार्य करना न रोको, ये पिता से उन्होंने पाया है। But the other side also is true, right? In what ways have we decided not to be like our fathers? और इसका दूसरा छोर जो है ये भी सच है कि नहीं, किन तरीकों से हमने ऐसा तय किया है कि मैं मेरे पिता के जैसे नहीं करूंगा या बनूंगा। So I remember my father used to get really angry sometimes. So I decided I'm not going to be that angry with my children. और मुझे याद है मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते कभी कभी, और मैंने तय कर लिया था कि मैं मेरे बच्चों के साथ में वैसा रवैया नहीं रखूंगा। These are important things to think about. और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। And then we'll quickly go through what is the role of a father. और फिर जल्दी से हम इस छोर की ओर देखेंगे कि एक पिता की भूमिका क्या होती है। 4 things. चार बातें हैं। Number one is a father establishes authority. और सबसे पहला है कि पिता जो है एक अधिकार को स्थापित करता है। I'm not going to go into the Bible verses there, but you can make a note of it and go through it later. और मैं यहाँ पर उन वचनों को नहीं पढ़ूंगा, उसे आप देखकर लिख लीजिए, बाद में आप देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 6, 1 से 4, 6 से 9। And then a father confers identity. और एक पिता जो है एक पहचान दिलाता है। Yes, identity is given by your father to you. और आपको पहचान अपने पिता से मिलती है।
Number three, a father provides security. और तीसरी बात है, पिता जो है सुरक्षा का प्रबंध करता है। And the last point is a father validates potential. और अंतिम बात जो यहाँ है कि पिता जो है अपनी क्षमता जो है उसे एक तरह से उसे सराहता है या उसे बढ़ावा देता है। So he establishes authority, he confers identity, he provides security, and he validates potential. और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो अधिकार को स्थापित करता है, पहचान देता दिलाता है, सुरक्षा का प्रबंध करता है और क्षमता पर मोहर लगाता है एक तरह से। And when even if one of these areas is not being fulfilled, that will be expressed by the child in a way that is not right. और यदि इन चारों क्षेत्रों में से यदि एक भी पूरी नहीं की गई तो बच्चा जो है इसे व्यक्त करेगा ऐसे रवैये के द्वारा जो सही नहीं है। Now imagine a child coming from a fatherless home. अब कल्पना करें एक बच्चा ऐसे घर से आ रहा है जहां पे पिता नहीं है He does not understand authority. और उसे अधिकार के बारे में कोई समझ नहीं है। There is no accountability, there is no sense of respect or fear. और किसी तरह से जवाबदेही के बारे में कोई कोई पता नहीं है, किसी भी तरह से भय अधिकार का कुछ भी नहीं है। And identity issues come from homes that are fatherless. और पहचान से जुड़ी समस्याएं जो है ऐसे घरों से निकल कर आती है जहां पर पिता नहीं होता है। There is a lot of insecurity in people. If you come across people with a lot of insecurity, children with a lot of insecurity, it's probably because they don't understand security that a father gives. और बहुत सी ऐसी असुरक्षितता होती है और बहुत सारा, और यदि आप ऐसे बच्चों के पास आओगे जो बहुत ही असुरक्षितता महसूस करते हैं, वो इस कारण ही क्योंकि वो ऐसे घर से आए जहाँ पर पिता नहीं रहा। You see a lot of children with a lot of doubt in their minds. Am I good enough? Those sort of questions comes because there is nobody to validate the potential of the child. और ऐसी भी एक समस्या आती है बच्चे के मन में, जो सोच आती सवाल आता है कि क्या मैं उतना पर्याप्त रीति से ठीक हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि वो बढ़ते समय उसके पास कोई नहीं था, जिसने पिता नहीं था जिसने उसे आश्वासन दिया, मोहर लगा कि हाँ ये अच्छा कर रहे हो, तुम ये अच्छा कर रहे हो। Right. So what is the connection? I'm talking about sport, but then suddenly I'm talking about fatherlessness. और मैं खेल्स के बारे में बात कर रहा था और अचानक ही यहाँ पर पिता का न होने के बारे में बात कर रहा हूं। इन दोनों के बीच में क्या मेल है? So what happens is this was a massive problem. This is a world problem. और ये एक बड़ी समस्या है, पूरे विश्व भर में फैली हुई एक विशाल समस्या है। And so what happens is when a coach takes the place of the father, और क्या होता है कि कोच जो है एक पिता की जगह ले लेता है। because when an athlete goes to the coach, he has to listen to the coach. और क्योंकि जब एक खिलाड़ी कोच के पास जाता है तो उसे कोच का सुनना होता, उसे मानना ही होता है सुनकर। And the coach gives identity to that player. और जो कोच है वो उस खिलाड़ी को एक पहचान दिलाता है। He sees where this person is good at, and he puts that player in the correct position to play. और वो देखता है कि इस खिलाड़ी में किस क्षेत्र में खिलाड़ी माहिर है, तो और उसे सही जगह पर वो स्थित करता है खेल खेलने। And the coach provides security. He corrects you when you do wrong. He encourages you when you do something right. So there is a sense of security there. और यहाँ पर जो खेल के द्वारा जो है ये कोच जो है वो एक सुरक्षितता, वहां पर सुरक्षित का माहौल का प्रबंध करता है और बताता है कि अगर कुछ आप गलत कर रहे हो तो आपकी गलती सुधारता है, दिखाता है आपको, और यदि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको शाबाशी देता है। See, a coach always knows your potential, and so he और keeps देख pushing you to give your best. और देखिए कि कोच को हरदम आपकी पूर्ण क्षमता के बारे में पता होता है और इसलिए वो आपको प्रोत्साहित करता जाता है कि आप अपना बेहतरीन दें। Right. So this fatherlessness was a massive problem in South Africa. So they introduced this concept of ubabalo, where this person went into a community with a football.
तो ये जो बड़ी समस्या थी, और इस कारण जो है दक्षिण अफ्रीका में, और इस कारण वे इस ओबाबालोस को लेकर आए। और ये ऐसा होता कि एक व्यक्ति फुटबॉल लेकर एक समुदाय में चला जाता, and they play football with the children in that community. और वहां पर उस समुदाय के बच्चों के साथ में वे फुटबॉल खेलते हैं। And they coach how to play football in that और community. और फिर उस समुदाय में जाकर वे उन्हें सिखाते हैं, कोचिंग देते हैं कि कैसे अच्छी तरीके से फुटबॉल खेला जाता है। And in the process, they are able to play all these 4 key points that a father's role has to play. और इस खेल को सिखाते समय, इस खेल सिखाने के प्रक्रिया में ये 4 बातें एक पिता के द्वारा जो की जानी चाहिए वो करते हैं उन बच्चों के साथ। And this has been happening even in India. और ये हो रहा है हमारे भारत भर में भी। Yes, so the sports ministry here in India, we run a program called Life Sports Academy. और जो भारत में जो है खेल का जो मंत्रालय है वो कार्यक्रम चलाती है, जो है लाइफ स्पोर्ट्स एकेडमी, Where we reach out to children in the community and we train them on football. और जहाँ पर जो है समुदाय में कि जो बच्चे हैं, उन्हें हम बुलाते हैं और उन्हें खेल फुटबॉल में प्रशिक्षण देते हैं। And this is how we reach out to children in the community. और इस प्रकार हम जो है समुदाय के बच्चों तक पहुंच करते हैं। And today in India, we have Life Sports Academy, not just for football, और आज भारत में हमारे पास सिर्फ लाइफ स्पोर्ट्स एकेडमी सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं है, we have for cricket, for volleyball, for hockey, for cycling, and for health and fitness. और हमारे पास में है क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए है, साइकिलिंग के लिए है, और सेहत से जुड़ी सेहत और चुस्ती के लिए है। Okay, so this is a brief idea of what can happen when a sport coach takes on the role of a father and how that becomes a ministry itself. और ये दिखाता है कि किस तरह से ये होता है जब एक कोच जो है वो किसी खेल का एक पिता का की भूमिका में आ जाता है और जीवन की बातों का असर करता है बच्चों पर। So Ubabalo, we are interested in the holistic development of the child through sport. तो बाबालों में हम जो है हम बच्चों की संपूर्ण रीति से विकास की ओर ध्यान देते हैं खेल के द्वारा। Okay, so we teach a sports skill. तो हम वहां पर खेल के एक कौशल्य को सिखाते हैं, and then we teach a value, और फिर वहां पर हम कुछ मूल्य सिखाते हैं, and then we teach them on life skill, और फिर जीवन की कुछ कौशल्य है उसके बारे में हम सिखाते हैं, and then there is a Bible connect with that. और फिर उसके साथ में एक शास्त्र का जोड़ होता है। So here's what the Ubabalo approach is. और उबाबालो का रुख जो है ये 3 बातों के बारे में है। There is a team huddle, और वहां पर टीम मिलकर एक साथ आ जाते हैं, and then there is a skill training or an interval training, और फिर वहां पर एक कौशल्य का प्रशिक्षण है या मध्यांतर का प्रशिक्षण है, and then we do a discovery Bible study. और फिर हम जो है शास्त्र का अध्ययन करते हैं खोज करते हुए। So the team huddle approach is something like this that you see on the screen. और टीम का एक साथ आना, जुड़कर रहना, शुरुआत में वो ऐसा दिखाई पड़ता है, उसका रुख जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। There is a warm up, we do drills, and then there is live coaching, then we play a small sided games, and then there is a cool down. और हम देखते हैं यहाँ पर कि हम अपने आप को गर्म कर लेते हैं, पहले तो कसरत करके, और फिर बाद में अलग अलग दौड़, अलग अलग कार्य होते हैं, और फिर बाद में जीवन की जो कोचिंग का भाग होता है, और फिर छोटे जो एक छोर के खेल होते हैं, और फिर बाद में अंत में थोड़ा ठंडा होने का समय होता है। Okay, and in the interval training approach, there are 4 steps: warm up, drills, game, and cool down.
और जो मध्यांतर प्रशिक्षण का जो रुख है उसके अंदर 4 बातें शामिल है। अपने आप को वार्म अप कर लेना, गर्म कर लेना, उसके बाद में अलग खेलों में से गुजरना, और फिर एक छोर में छोटे खेल होना, और उसके बाद में ठंडे पड़ जाना। A most simple approach is the Discovery Bible approach, where you do the Bible study and then you do sports coaching. और सबसे आसान जो रुख है वो है कि खोज करते हुए पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना, जहाँ पर वो अध्ययन कर रहे हैं आप, और उसके बाद बाद में आप खेल का भी कोचिंग दे रहे हैं। Okay. So this is a quick look at what the Ubabalo program looks like. और ये जल्दी से आपके सामने दिखाया गया है कि उबा बालो कार्यक्रम कैसे दिखाई देता है। Now, how you run this program has three issues. Number one और is इस और इस कार्यक्रम को किस तरह से चलाते हो, इसके 3 अलग अलग मुद्दे। सबसे पहला है environment and the context. और जो वहां पर वातावरण है और किस संदर्भ में आप काम कर रहे हो, The participants' motivation and personality challenges. और जो वहां पर जो लोग भाग ले रहे भागीदार जो है, भागीदारियों को प्रेरित करना, और उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुई चुनौतियां होती है। And group dynamic challenges. और समूह में अलग अलग लोगों के अलग अलग जो व्यक्तित्व स्वभाव की जो चुनौतियां उभर कर आती हुए। Now, the beauty of whole life coaching is you don't have to be an expert in the sport. और ये जो है पूर्ण जीवन की जो कोचिंग की सुंदर बात है, इसे करने के लिए आपको उस खेल में माहिर होने की जरूरत नहीं है। You can run a whole life coaching program. आप एक पूर्ण जीवन के इस कोचिंग कार्यक्रम को चला सकोगे। And if you feel that you are not skilled enough to teach a skill of the sport, और यदि आपको लगता है कि आप उस खेल के कौशल्यों को सिखाने के लिए आप उतने काफी माहिर नहीं हो, then you should find somebody who can help you only in that aspect, only in the skill aspect. तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आपकी मदद कर पाएंगे सिर्फ उसी उसी पहलू के लिए, जो है सिर्फ जो खेल सिखाने का पहलू, उस कौशल्य से जुड़ी हुई बात। And then all the other elements you can do it yourself. और बाकी के सब कोचिंग के बाकी जो भाग है, उन सभी पहलुओं को आप सिखा सकते हो और आप उसे संभाल सकते हो। So we have a curriculum that is designed. और हमारे पास में एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे हमने रचाया है। We have this curriculum for over 25 sports. और हमारे पास में पाठ्यक्रम है लगभग 25 खेलों के लिए। And all of this is open source. और ये सब जो है खुली तरह से इसका स्रोत है। All right. So all you have to do is you visit www.readysetgo.tools. और आपको इतना ही करना है कि ready.tools readysetgo.tools. सॉरी readysetgo.tools है, ये है साइट का नाम। And then you can go there and search for Ubabalo. और वहां पर जाकर आप उबा बालो की खोज कर सकते हो। And then you can download these resources. और ये सभी आपके लिए उपलब्ध है, सभी संसाधनों को आप डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। Okay, coming back, what Ubabalo hopes to do is we want to transform people and communities. और हम लौट कर आए उबा बालो के पास में। उबा बालो आशा रखता है कि आपकी मदद करे, जिससे कि वो लोगों के और समुदायों को परिवर्तित कर सके। Disciple teenagers and children. और किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं और बच्चे हैं, उन्हें शिष्यत्व में बढ़ाना। And help correct the problems of fatherlessness. और पिता के न होने के कारण उभरने वाले समस्याओं का सुधार करने में मदद करना। So this is one strategy in the sport ministry movement. और जो खेल की जो सेवकाई की जो गतिविधि है, उसमें की ये एक रणनीति ये है। So in the sport movement we run trainings throughout the year. और जो बच्चों की सेवकाई में खेल की सेवकाई में कार्यक्रम हम साल भर में चलाते हैं। We have 3 levels of trainings. Level 1 is a 3-day program. और हमारे जो है 3 स्तर होते हैं कार्यक्रम का, और पहला स्तर होता है 3 दिन का कार्यक्रम। And it happens in every state in India.
और ये भारत के हर एक राज्य में होता है। And then we have a level 2 school. It's a 25-day school that happens in Chennai. और फिर ये लेवल 2 स्तर 2 जो है, जहाँ पर 25 दिन का एक स्कूल चलता है चेन्नई में। And then we have a 3-month level 3 program that runs in South Africa. और फिर हमारा 3 महीने का जो है तीसरा, सॉरी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। Yeah, it's called the International Sports Leadership School. और अफ्रीका में ये जो होता है, ये खेल जो अंतरराष्ट्रीय अगुवाई की जो ये स्कूल चलती है। So the main intention is to help people use sport as a platform for ministry and missions. और जो है खास उद्देश्य ये है कि जिससे कि लोगों की मदद कर सके, उन्हें एक मंच जो है उसका प्रबंध कर सके, जिससे कि हम लोगों की मदद कर सके खेल के द्वारा। You can always get in touch with me or Sister Angie, who can connect us if you're interested in any of this that I've mentioned. और जिन बातों को आपके सामने मैंने रखा है, यदि आपको इसके बारे में और जानकारी है, अब दिलचस्पी है, तो जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं या एनजी से भी संपर्क कर सकते हैं। That brings us to the end of this session. It's a brief one, it's a quick one. I hope it's been और helpful. और इसी के साथ में हमें इस सत्र के हम अंत में आकर पहुंचे हैं। आशा करता हूं कि जो मैंने बताया इससे आपको मदद मिली होगी, आपको सहायता मिली होगी। I've only given you a sneak peek at the sport ministry movement. और मैंने आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा झलक दिया है और ये खेल की सेवकाई के बारे में।